Good evening. It is my pleasure and privilege to introduce our next speaker, uh, Mrs. Neha Dhulla, and the topic is Eat Healthy. To give you a flavor of importance of the topic which she is going to cover, uh, let us understand what is our greatest wealth and key to wellness and success. The most important lesson learned in life in 2019 and 20 from COVID-19 pandemic was that health is a priority, not a privilege. COVID-19 did not spare the young or the old, rich or the poor, as it went globe trotting. The most important life lesson that we learned is that the health is the greatest wealth. Looking good, feeling good go hand in hand. If you have a healthy lifestyle and your diet and nutrition are set and you are working out, you are going to feel good. You do not have to eat less, you just have to eat right. Eat sensibly and achieve better physical and mental fitness. The diet is a bank account and good food choices are good investments. Our next speaker, Ms. Neha Dhulla, is going to enlighten us on necessity, benefits and importance of eating healthy and wellness. Neha has done postgraduate diploma in food nutrition and hospital food care services. She is certified yoga instructor from Kaivalya Dham Yoga Institute, Lonavala. Practicing nutritionist since 2009, that is 13 plus years of work experience with Digestive Health Institute. Working closely with Dr. Mufazal Lakdawala. He is India's best known laparoscopic surgeon, the co-founder and chief surgeon at Digestive Health Institute. As a senior manager in nutrition and clinical practices, her responsibilities involve preparing patients pre-operatively for surgery and post-operatively hand-holding them, thereby ensuring smooth diet transition, managing outstation OPD, thereby building patient relationship and continuity. Special projects, special assignments handled by her. As a part of core team managing the weight loss surgery of world's heaviest woman, Iman Ahmad. She was Egyptian and it was done in April 2017. And as a chief nutritionist at the NSCI World COVID Center in April to May 2021. So with big round of applause, let us welcome Neha to enlighten us on what is the greatest wealth in our life. So I will start by thanking Dollar Uncle here. He is my uncle. Because of him, I got this opportunity to talk to all of you, to be a lecturer, or to be a speaker here. Thank you so much, Dollar Uncle. Thank you, Sudhir Uncle, for this opportunity. Thank you, Rotary Club, for having me here. So before we start the official presentation, very simple question आप सभी के लिए कि what is health? हम जब health word सुनते हैं क्या दिमाग में आता है? Anybody? What is health? Physical wellness, yes. What else? Mental also, yes. Correct, absolutely correct. So, this is working. So, जो official definition है, that itself says, as defined by World Health Organization, that it's a state of complete physical, mental and social well-being and not merely absence of disease. हम किसी को देखते हैं, हम बोलते हैं कि ये healthy है because इनको कोई बीमारी नहीं है, because कुछ diabetes नहीं है, blood pressure नहीं है, तो ये healthy है. But is it true in this time, in this day and age, जहाँ हम mental health या emotional health की इतनी बात कर रहे हैं, तो is it true just कि हमको कोई बीमारी नहीं है तो हम healthy हैं? Not really. It's not just physical health. The पूरा जो पहले focus था weight और disease पे था. अगर किसी का weight थोड़ा सा ज़्यादा है, न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन का वर्ड सुनते ही फर्स्ट एसोसिएशन आता है कि वेट लॉस, राइट? फर्स्ट थिंग जब आप
आपने सोचा होगा कि हेल्दी ईटिंग या कोई डाइटिशियन बोलने वाली है तो फर्स्ट थॉट ये आता है कि वेट लॉस के बारे में बात होगी, राइट? बट नाउ द फोकस ऑफ हेल्थ इज नॉट जस्ट ऑन weight or diet. Diet is one part of your overall wellness, overall health. Okay, so nutrition health की हम obviously in detail बात करेंगे, but physical health, your sleep pattern, your stress management, your work life balance. आज मैं मेरे आइडल बॉडी वेट पर हूँ. फॉर एग्जाम्पल मेरी हाइट के हिसाब से मेरा वेट होना चाहिए 65, एंड इफ आई एम 65 kg इट डजंट मीन दैट आई एम हेल्दी, राइट? आप सभी लोग टीनेज से निकल कर अब अर्ली एडल्टहुड में है, राइट? मोस्ट ऑफ यू आर स्टार्टिंग योर जर्नी, स्टार्टिंग योर करियर्स. तो इस एज में ना फूड पे इतना ध्यान नहीं आता, जो मिला खा लिया, फोकस ही नहीं होता फूड, राइट? या कभी वो थॉट भी नहीं आता कि आगे चल के वजन बढ़ेगा या आगे चल के बीमारी आएगी. दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर, हाउ टू पुट इट सिंपली, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर प्राइमरी थॉट प्रोसेस, करेक्ट? या प्रेफरेंस, क्योंकि इस एज ग्रुप में, बिकॉज ऑल ऑफ अस हैव बीन थ्रू दैट, राइट? अब हमारे 20s या 30s में हम नहीं सोचते इतना क्या खा रहे हैं, हम नहीं आजकल की जनरेशन फिर भी काफ़ी अवेयर है, काफ़ी कॉन्शियस है, बट बिकॉज वी आर रनिंग बिहाइंड स्टडीज़, करियर, जॉब, फूड टेक्स अ बैक सीट इन द सेंस कि हम इतना चॉइस, इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते उस चीज़ को. ओके, स्लीप पैटर्न, अनदर थिंग जो हम ध्यान नहीं देते, इंक्लूडिंग मी टुडे, आई एम श्योर ऑल ऑफ अस, वो जो recommended 7-8 hours of sound sleep है उसको हम नहीं ध्यान देते. But it is so important from a weight perspective also, because I am a nutritionist, I will get in the weight angle at every step. जो लोग कम सोते हैं उनका वज़न भी ज़्यादा बढ़ता है. We never associate these things, but it is a fact. Alright? Stress management. Now आप में से कुछ लोग होंगे जो अगर टेंशन आता है तो बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत चिल्लाते हैं. आप लोग में से कुछ लोग होंगे जो थोड़ा कामली हैंडल कर पाते हैं. हाउ यू मैनेज योर स्ट्रेस इज ऑल्सो डिटरमाइनिंग योर ओवरऑल हेल्थ, राइट? योगा जो लोग करते हैं, थोड़ा मेडिटेशन करते हैं, थोड़ा कामली हैंडल कर पाते हैं, थोड़ा प्रोसेस कर पाते हैं जो लोग, दोज आर ऑल्सो इन बेटर हेल्थ कंपेयर टू अदर्स. लास्टली योर वर्क लाइफ बैलेंस, बिकॉज आप लोगों का करियर स्टार्ट हो रहा है. वेरी 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 इंपॉर्टेंट योर कि डू नॉट मेक योर जॉब, योर करियर 98 or 99% of your life. Your family life, your friends, your social life, balancing all of that is very very important. With this premise, I will just quickly start our main topic. So what is the difference between diet and nutrition? Anybody? Okay, I will not keep that slide वरना आप लोग पढ़ के आंसर करेंगे. But what is the difference? What do you think? Diet क्या होता है और nutrition क्या होता है? Yes, nutrition gives energy to your body. Diet word सुन के क्या दिमाग में आता है? Anybody? मुझे लगा the younger generation will have so much input. कोई हाथ ही ऊपर नहीं कर रहे. Yes. Correct, absolutely correct. Anybody else? Anything? Nutrition is a part of diet. In a way, correct. So diet is basically the food that you are eating. Diet is not, अगर हम कहते हैं कि हम diet पर हैं, it means that you are on a weight loss diet or you are on a specific diet, right? Diet is, it could be like, I will say I am a vegetarian, somebody will say I am a non-vegetarian, somebody will say I am on a vegan diet, right? We will talk about the types of diet as well, but in a nutshell, it doesn't refer to restriction or elimination of foods. Diet word ही इतना restrictive है ना, कोई बोलता है कि diet पे है मतलब ये कम खा रहे हैं, right? या ये तो फ्राइड नहीं खा रहे होंगे, मीठा नहीं खा रहे होंगे. दैट इज़ द फर्स्ट इम्प्रेशन व्हेन वी हियर द वर्ड डाइट. ओवर द इयर्स, बिकॉज ऑफ मार्केटिंग, बिकॉज ऑफ दिस थिंग, इतना नेगेटिव कोनोटेशन बन गया है डाइट को लेके कि कोई अगर डाइट पे है मतलब
कुछ कर रहे हैं, whereas it is not the case. If you are following a certain diet doesn't mean that you are on to something, okay? It just means that you have made a choice, okay? So it refers to the food that a person habitually eats. I am habitually a vegetarian, right? That means I am on a vegetarian diet. It doesn't mean that I am restricting or eliminating a particular food group, all right? Nutrition refers to the quality of food. So जो nutrients हैं, we will talk about a little bit technical stuff, protein, carbohydrates, I'm sure वो भी आप लोगों को kind of basic idea होगा, because आज हर कोई low carb diet, high protein diet, इन diets पे हम follow करते हैं. So nutrition refers to the quality of food and not the type of food. It includes all the nutrients that our bodies need to perform efficiently. So very quickly, इस पे मुझे बहुत डिटेल में नहीं जाना है, but these are the main nutrients that we look out for in your food. Macronutrients वो होते हैं जिससे जो खाने से हमें एनर्जी मिलती है. Okay? Now प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स सारे फूड सोर्सेज में होते हैं, बट ऑब्वियसली कुछ चीज़ें होती हैं जो हम बोलते हैं ये प्रोटीन रिच है, ये फैटी फूड है, या ये कार्बोहाइड्रेट रिच है. सो ये जो ब्रेकअप मैंने दिया है यहाँ पे, दिस इज़ काइंड ऑफ एन आइडियल बेसलाइन ब्रेकअप जो हमारे डाइट में होना चाहिए. ओके, नाउ आई एम नॉट शेयरिंग अ पर्टिकुलर डाइट प्लान ईयर, बट दिस इज़ जस्ट अ जनरल गाइडलाइन कि हमारी डाइट किस तरह की होनी चाहिए फॉर अ हेल्दी एंड सस्टेनेबल लाइफ, फॉर यू टू परफॉर्म एफिशिएंटली. क्या डिफरेंस आता है जब हम कुछ हेल्दी खाकर ये करते हैं और कुछ अनहेल्दी खाते हैं? जो मोस्ट क्लासिक डिफरेंस है वेट, राइट? जब हम बहुत अनहेल्दी खा रहे हैं वेट गेन हो रहा है. व्हाट आर द अदर थिंग्स? कुछ चीज़ें अगर आप बता सके जो आपके खाने पे डिपेंड करती है. एनीथिंग? यस, laziness, your energy levels basically. Anything else? Mobility, yes. Body heat increases, yes. With certain type of food, your body heat increases. So what happens is that जब हम कहते हैं कि हम लो कैलोरी डाइट पे हैं या हम हाई कैलोरी फूड खा रहे हैं, so the calorie, हमारा focus in general, especially in India, we've seen that the focus is on calories. कि overall मेरा caloric intake 1500 है या 2000 है. Calories are not that important. Your nutrients are important, right? हम today there are so many salad bars opening. Today there are so many restaurants जहाँ सिर्फ salad मिलता है, right? तो वहाँ पर आप जाकर salad खाते हैं तो one salad is equivalent to 350-400 calories. Similarly, अगर आप रोड से एक वड़ा पाव खा रहे हैं, that also will give you 400 calories. Now आपने calories तो same ली है, but what is healthier? Obviously a salad. So calories is not that important. So we will again talk about the marketing कि किस तरह हम calories से influence होते हैं. But these are just to give you a very very basic form कि protein sources क्या है. ऑलवेज जब हमारा मील प्लानिंग करते हैं या जब आप डाइट आपका सोचते हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे जो मैं ऑलरेडी कर रही हूँ या कर रहा हूँ उससे मुझे थोड़ा हेल्दी खाना है, आप जो यहाँ पे मिडिल में जो क्राउड बैठा है, नन ऑफ यू नीड वेट लॉस, राइट? ऑल ऑफ यू आर इन दैट एज वेयर यू डोंट नीड वेट लॉस प्रॉबली. बट अगर आप सोच रहे हैं कि जो मैं खा रहा हूँ उससे मैं थोड़ा बेटर खाऊँ सो दैट आई परफॉर्म एफिशिएंटली, These are just the basic guidelines. So protein हमें include करना है हर meal में. Major meals जो है breakfast, lunch, dinner, try and include a protein source. Non-vegetarian sources obviously egg, chicken, fish. Vegetarian sources all your dals and pulses, soya products, milk, paneer, all your dairy products are primary protein sources. अब again in Indian घरों में क्या होता है, फ्रिज में क्या पड़ा है उससे हम डिसाइड करते हैं कि क्या खाना बनेगा, राइट? वी डोंट pre-plan our menus. आज ये मन है, आज ये खा लिया. A very important key in planning your meals or choosing to eat healthy is advance में plan करके रखिए. On a weekend plan कि Monday to Saturday tentatively मुझे ये खाना है, buy accordingly.
When you buy कि मुझे पालक पनीर खाना है, जब फ्रिज में होगा पालक पनीर तब बनाओगे ना आप, अदरवाइज कैसे बनाओगे? If you know that Thursday morning or Wednesday morning I have to have paneer in my breakfast, you will make it on Tuesday or you will make it on Monday and keep. So planning is very, very important when you are making your menus. So always keep your meals planned so that you buy your stock accordingly. All right. Breakfast, lunch, dinner जो major meals हैं, इसमें protein is a must. It is a must whether you are on a weight loss diet, a weight gain diet, a vegetarian diet, a non-vegetarian diet or a vegan diet for that matter. Protein जो सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है आपका, आपके हर स्टेज ऑफ लाइफ में आपको हेल्प करेगा, आपके वेयर एंड टेयर में हेल्प करेगा. आपकी डाइट में जब प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती है, ऑटोमेटिकली यू विल नॉट क्रेव फॉर स्वीट, यू विल नॉट क्रेव फॉर सॉल्टी फूड्स. मेजर वीक पॉइंट्स क्या होते हैं हमारे? मिठाई और तला हुआ खाना, राइट? This you will see the difference in 3 weeks, trust me. In 3 weeks, if you increase more protein, especially all our Gujarati brothers and sisters here, protein होया ज नहीं. You check your blood sugar levels, maybe protein will be okay, but if अगर हम diet recall लेके मैं officially calculate करूँ, तो your protein intake will be less than 10 grams. Because कहाँ आता है protein? Milk में, सुबह breakfast में. Breakfast में चाय कॉफ़ी में तो नेग्लिजिबल प्रोटीन हो गया. मिल्क विल हैव सम प्रोटीन. योर लंच एंड डिनर विल हैव 1 कटोरी दाल. डिनर तो दाल होता नहीं है, रोटी सब्जी वी डोंट ईट. सो लंच में हो गया 1 कटोरी दाल या अगर दही ले लिया, दैट्स इट. सो 10 ग्राम से भी कम प्रोटीन है, वेयर एज योर रिक्वायरमेंट इज ऑलमोस्ट 40 to 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे. आपकी जो हाइट है उस हिसाब से ऑन एन एवरेज in Indian scenario I can say 40 to 50 grams protein you need. Okay, so protein try and ensure in every meal. Carbohydrates here, आप में से कितने लोगों ने सुना है कि low carb diet is good या carbohydrates are bad? सबने सुना है. Okay, लो कार्ब, मैं लो कार्ब डाइट पे हूँ. आई एम अवॉइडिंग कार्ब्स. હું ઘઉંની રોટલી મેં બંધ કરી છે, હવે હું કાર્બ્સ બંધ કરું છું, રાઈટ? જવારની રોટલી ખાઉં છું. જવાર ઇઝ ઓલ્સો કાર્બ્સ, मोस्ट ऑफ यू डोंट नो. बट कार्बोहाइड्रेट्स को इतना बैड कोनोटेशन अगेन मिला है फॉर नो राइम एंड रीज़न. किसी ने बोल दिया ग्लूटेन फ्री डाइट खाना है तो हम सब लग पड़े ग्लूटेन फ्री. ग्लूटेन नहीं खाती आजकल, राइट? कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड द मैक्सिमम एनर्जी टू योर बॉडी. योर ब्रेन नीड्स इट. जिस दिन आप कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक आपका लो करते हो, योर ब्रेन फंक्शनिंग गेट्स अफेक्टेड इन अ वीक्स टाइम. Okay, now there are 2 parts to carbohydrates, again not going in the technicality, but मैंने इसलिए images अलग रखे हैं. ये जो लेफ्ट साइड पर आप देख रहे हैं, ब्रेड, नूडल्स, राइस, आइसक्रीम्स, मिठाई, these are your simple carbohydrates. और उस साइड पर जो है your fruits, vegetables, grains, nuts, etc. are your complex carbohydrates. Now the word is little confusing, but simple carbohydrates are the bad ones and complex carbohydrates are the good ones. Okay, so you need to have a balanced intake of your complex carbohydrates and you avoid the simple carbohydrates. Fat sources, oil, butter, ghee, obviously we avoid. नो इट्स अ नो ब्रेनर. हमें वो जितना हो सके वो इनटेक कम रखना है. ऑल योर हेल्दी फैट्स आर योर नट्स, सर्टन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स लाइक एवोकाडो, ऑल योर नट बटर्स जो आजकल मिलते हैं, पीनट बटर एक्सेट्रा, दोज आर हेल्दियर फैट्स. सो ट्राई एंड इनकॉर्पोरेट दोज. अगेन इन अ नटशेल, यू नीड एवरीथिंग फॉर sustainability for your overall wellness. Okay, so एक balanced diet is the key. Not to avoid carbohydrates, not to avoid fats. Zero diet, zero fat पे हूँ मैं, zero carbs पे हूँ, that is not the key. How many of you have heard these diets? Intermittent fasting, very very famous, very effective also in some patients, in some people. GM diet is one of the oldest diet. Gluten free, keto, vegan diet, DASH diet. Now
जो लोग वेट लॉस के लिए देख रहे हैं या जो लोग इन जनरल हेल्दी होने के लिए देख रहे हैं, यू विल थिंक कि मैं क्या करूँ इसमें से, विच डाइट इज़ सूटेबल फॉर मी. सो दैट ऑब्वियसली यू नीड प्रोफेशनल हेल्प, बट इन माई ओपिनियन you don't need to do anything. You don't need to go on a specific diet per se, because it's not a temporary thing. कोई target नहीं achieve करना है हमें. Sorry, this is running very fast. Not a phase, make it your lifestyle. So step by step, small simple steps, your small efforts, your daily choices contribute to a healthier lifestyle. So these are the points. Sorry. How to eat healthy and stay fit? Just keep it simple, keep it real. Please keep it very, very simple. Especially I'm talking to the younger generation more here, that in general you do not need to follow any fad trend. Just because एक friend follow कर रहा है मैं भी ये कर रही हूँ, just because उन्होंने bread बंद किया मैंने भी बंद किया. Do not follow anything blindly. आप देखिए कि आपकी हेल्थ कहाँ पर है, आपका फैमिली जेनेटिक्स क्या है. इफ़ योर फ्रेंड्स आर ईटिंग आउटसाइड, मैं भी डेली बाहर खा रही हूँ, बट इफ़ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री ऑफ ओबेसिटी, इफ़ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर इन योर फैमिली, दिस इज़ द एज जहाँ पर आपको आपके स्टेप स्टार्ट करने हैं, आपको केयरफुल रहना है. अगेन, नॉट टू टेक टू मच प्रेशर ऑन दैट, बट इट हैज़ टू बी इन योर हेड कि मेरे पापा को अगर डायबिटीज़ है, कल उठ के मुझे 50% मेरी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है. ओके, एनीबडी हु इज़ डायबिटिक, इट्स 50 to 60% जेनेटिक एंड 30 to 40% लाइफस्टाइल इंड्यूस्ड, राइट. तो अगर आपके घर में किसी को है, आपके पेरेंट्स को, आपके ग्रैंड पेरेंट्स को, सो यू मीन कि आपको, इट मीन्स कि आपको फाइट करना है कि आपको डायबिटीज़ नहीं हो. ओके, एंड 20s या 30s में नहीं आएगा, ये आएगा 40s में. बट 40s में क्या होगा ये डिटरमाइन कब होगा, आपके 20s और 30s में जो आपकी लाइफस्टाइल है उससे डिटरमाइन होगा. दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज़ एंड मेक हेल्थियर चॉइसेस फ्रॉम नाउ. स्किपिंग मील्स, फास्टिंग डजंट हेल्प. वेरी सिंपल. हम क्या करते हैं, जैन लोग क्या करते हैं पर्यूषण में, હમણાં હું ખાઈ લઉં છું ચોમાસામાં, પછી પર્યુષણમાં ફાસ્ટ કરી લઈશ, બિકોઝ સમ પીપલ કેન ડુ દેટ, તો ટપમાં નીકળી જશે. इन जनरल वेट लॉस के लिए मैनी पीपल अडेप्ट दिस, राइट, कि हमने खाना ही बंद कर दिया है. हम आज मैं लंच नहीं खा रहा हूँ, मैं डिनर नहीं खा रहा हूँ, दैट विल गिव यू टेम्पररी वेट लॉस. ओके, जो इनिशियल वेट लॉस होता है, आप कोई भी डाइट पकड़ लीजिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग, कीटो डाइट, एनी डाइट यू पिकअप, इनिशियल वेट लॉस जो होता है दैट इज़ वाटर लॉस. यू विल नॉट अंडरस्टैंड, बिकॉज बाहर से तो हमें वेइंग स्केल पे तो पता नहीं चलता कि क्या वेट गया है, मसल लॉस गया है, फैट लॉस गया है, वाटर वेट गया है, क्या गया है, वी डोंट नो. बट इनिशियल जो लॉस होता है दैट इज़ वाटर लॉस. वी थिंक कि अरे ये डाइटिशियन बहुत अच्छी है, जाते ही 1 month में मेरा 7 kg कम हो गया. बट बाय डूइंग वॉट? येस, इफ़ यू आर फॉलोइंग अ वेल बैलेंस्ड डाइट दैट इज़ वेरी गुड, बट डू नॉट फॉलो एनी ट्रेंड्स ब्लाइंडली. स्टे अवे फ्रॉम पैकेज्ड फूड्स. अगेन, the simplest thing you can do is to avoid packaged foods. आप लोग जब कॉलेज जाते हैं, इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हैं, या जॉब अगर कोई लोग कर रहे हैं, क्या खाते हैं जनरली बाहर? what are the snacks? all of you are blank. क्या स्नैक्स खाते हैं? वड़ा पाव, सैंडविच, समोसा, काका, फ्रैंकी, pizza. What else? Girls, what do you eat outside generally? Wafers, biscuits. Yes, packaged foods are the biggest culprit. Okay, so please, as much as possible, carry homemade stuff. I understand इतना सब करना होता है, सुबह जल्दी जाना होता है, तो it becomes difficult. Again, your planning comes in handy. So as much as possible, avoid packaged foods. You don't need expensive foodstuffs to be healthy. Moderation is the key. हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार, if you enjoy, बारिश हो रही है, you enjoy one वड़ा पाव, it's okay. If you do it 5 times in a week, कि 5 बारिश की सीज़न है, अभी मुझे मन हो गया, that becomes the problem. So moderation is the key in every diet that you follow. Okay.
These are some simple options, restaurant options in, और in general भी आप बाहर खा रहे हैं. Instead of cold drinks, you pick up नींबू पानी और a buttermilk or coconut water. अगर आप बाहर हैं, if it's monsoon or if it's summer season, coconut water, normal नींबू पानी, again that you can do without sugar. Buttermilk, these buttermilk में packaged, अगर आप वो package ले रहे हो एक बार चलेगा, right? Instead of having a cold drink, अगर बहुत गर्मी है आप बाहर हैं, आप कोल्ड ड्रिंक लेने से अच्छा अमूल का आपने मस्ती छाछ ले लिया, दैट इज़ अ बेटर ऑल्टरनेटिव, राइट. फ्राइड स्टार्टर्स स्नैक्स के कंपैरिजन में योर तंदूर स्टार्टर्स, यहाँ पे इडली ढोकला, दीज आर ऑल स्टीम्ड स्नैक्स. सो कंपैरेटिवली जब भी आप बाहर खा रहे हैं यू आर मेकिंग अ हेल्दियर चॉइस, राइट. इंस्टेड ऑफ अ वड़ा पाव और अ समोसा, you have a सूखा भेल और a डोसा. So not to say कि अभी डाइटिशियन ने बोला है तो बाहर मैं डेली सूखा भेल खा सकता हूँ, right? Please don't do that. But these are just simple techniques कि बाहर तो खाना ही है. कॉलेज जाएंगे तो नहीं पॉसिबल है कि आप डेली घर से लेकर जाएंगे टिफ़िन. आप फ्रेंड्स के साथ जाएंगे, आप जॉब पे जाएंगे, यू विल ईट आउटसाइड. दैट इज़ अ रियलिटी. सो आई कैन नॉट से कि नहीं घर से डब्बा ही लेकर जाओ और वही खाओ. दैट इज़ नॉट पॉसिबल. यू आर गोइंग टू ईट आउटसाइड. बट वॉट टू चूज़, आप हफ्ते में 10 दिन में एक बार आप कुछ अनहेल्दी चूज़ करें, दैट इज़ ओके. बट ऑन अ डेली बेसिस कॉन्शियसली जब आप हेल्दियर ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, दैट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू योर हेल्थ. इसका जो बेनिफिट है, योर फ्यूचर सेल्फ विल थैंक यू फॉर चूजिंग हेल्दियर ऑप्शंस टुडे. ओके, देयर इज वन डेजर्ट ऑप्शन ऑल्सो. ये मैं स्लोली कर रही हूँ ताकि मैं बता सकूँ. आइसक्रीम की जगह यू गेट दीज एंड मिलते हैं, यू गेट दीज अनफ्लेवर्ड योगर्ट्स. सो दोज आर sweetened yogurts जो थोड़ा better option है. Fruits are better option compared to having an ice cream. You get sugar free ice creams also, but this is just basically आपको बताने के लिए कि हर जगह एक option possible होता है. कई लोग excuse क्या देते हैं कि अरे बाहर जवान उठाए खाऊच पड़े, शू करे, right? क्या करें, अभी जाना ही पड़ेगा. So just to give you my boss's example, हम एक कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे. there was nothing like Chinese cuisine was served. उन्होंने नहीं खाया, बाकी सब कुछ फ्राइड था, he didn't eat. दाल था, he was not eating rice for some reason. तो he just had that दाल की 3 कटोरी पी ली उन्होंने to say that मेरे को नहीं खाना है because 5 दिन का कॉन्फ्रेंस है. every day I don't want to eat outside. कल का ये क्यूजीन है विच आई वॉन्ट टू एन्जॉय. सो टुडे आई एम नॉट हैविंग फलाना ढिंगड़ा एंड हैविंग ओनली दाल सो दैट आई डोंट ओवर स्पेंड और डोंट ओवर दिस थिंग ऑन माई कैलोरिक इनटेक. ओके, सो it is just about making a healthy choice on a daily basis. Okay, diet is very very simple if you try and understand, and very complicated if you make it complicated. ओके, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव फूड स्टफ या बहुत ज़्यादा कुछ ओट्स लाना पड़ेगा, म्यूजली लाना पड़ेगा, कीनवा या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है. आपके डेली फूड स्टफ पे रहिए. ईट सीजनल, ईट लोकल. दैट इज़ द simplest way to follow a healthy diet. Here are some easy healthy snacking options. So red में जो आप देख रहे हैं वो obviously those are the no-nos. Biscuits, chips, cookies, cheese balls, गाठिया, फरसान. So many houses have this habit of having गाठिया फरसान with everything, right? दाल राइस खा रहे हैं उसके साथ गाठिया फरसान. एंड ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम नहीं रियलाइज भी नहीं करते, जो हम अनहेल्दी कर रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस. सो दीज आर द थिंग्स जो हमें चेंज करनी है. वॉट यू कैन डू, रोस्टेड चना, पीनट्स, मखाना, पॉपकॉर्न, सिंपल पॉपकॉर्न, योर खाखरा, कुरमुरा, बेक्ड और रोस्टेड स्नैक्स. नाउ मार्केट में बहुत सारे रोस्टेड बेक्ड स्नैक्स आजकल मिल रहे हैं. इट इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग कि क्या हेल्दी है, क्या हमें लेना है, क्या नहीं लेना है. बट अगेन वी विल टॉक अबाउट द फूड लेबल. बट थोड़ा अगर आपके पास टाइम है तो दो ज़्यादा ऑप्शंस जो एक्सट्रीम राइट पर हैं, जो थोड़ा मेहनत करना पड़ता है किचन में, बट दोज आर योर इवनिंग स्नैकिंग ऑप्शंस जो आप
easily replace कर सकते हैं rather than having your biscuits, because चाय के साथ डेली 4 बिस्किट बहुत लोगों का फिक्स ही होता है. मैं ज़्यादा खाती ही नहीं हूँ, बस 4 बिस्किट. Those 4 biscuits are made of मैदा, they have very high sugar. Sugar is the biggest culprit today. ये जो पूरा लो फैट या फैट को कल्प्रिट बनाने का जो मार्केटिंग ये था, दैट इज़ ऑल नाउ शिफ्टिंग टुवर्ड्स शुगर. ओके, तो शक्कर जितना हो सके ओवरऑल आपके डाइट में हमें कम लेना है. हाउ टू रीड अ फूड लेबल. कितने लोग कोई प्रोडक्ट बाय करने से पहले लेबल पढ़ते हैं? वेरी गुड. सो व्हाट डू यू लुक फॉर इन द लेबल? नो, डोंट लुक देयर. हाँ, आप उधर से पढ़ के आंसर नहीं दें. हाँ हाँ, करेक्ट, वेरी गुड. Added sugar. All right. What? Some of you raised your hand here. Expiry date, very important. Very important. Thank you for sharing this because it's very important. Price tag. That is the first thing. उसके बाद ये लेबल, सोडियम, कोलेस्ट्रॉल सब बाद में आएगा. पहले आएगा प्राइस टैग. हाँ, बच्चे क्या देख रहे हैं? I want to know that. Yes. FSSI tag, very good. What else? किसी को है आदत देखने की? बिस्किट का पैकेट पीछे देखा, न्यूट्रिशन क्या है, ब्रेड का पैकेट देखा. वेरी रिसेंटली, वेरी इंपॉर्टेंट. सो कैलोरीज हम देख लेते हैं. नाउ कैलोरीज होगा 160, बट 160 फॉर व्हाट? हाउ मेनी सर्विंग्स? सो दैट इज इंपॉर्टेंट. सेकेंड इज ऑल योर फैट, सोडियम, शुगर. सो ये टेक्निकल हो गया. सर्विंग साइज पे हमें ध्यान देना है, कैलोरीज पे ध्यान देना है. फैट, सोडियम, कोलेस्ट्रॉल ऑब्वियसली लो होना चाहिए. विटामिन, मिनरल्स ज़्यादा होना चाहिए. तो ये बेसिक्स है. टोटल शुगर हमने देख लिया. अब शुगर जो है, इंग्रेडिएंट्स में शुगर लिख के नहीं आता बहुत बार. देयर आर सो मैनी अदर नेम्स फॉर शुगर. अब हमने देख लिया टोटल शुगर 7 ग्राम है. हम सोच रहे हैं ओके चलो भी 200 ग्राम के प्रोडक्ट में 7 ग्राम ही शुगर है, तो उतना तो चलता है, उतना इट्स हेल्दी इनफ. बट ये सारे शुगर के नाम है विच कंपनीज डोंट टेल यू. इसमें सबसे फेमस है हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप. अब ये नाम पढ़ के नन ऑफ अस विल अंडरस्टैंड कि ये शुगर है, राइट? वील थिंक कि कोई होगा केमिकल. माल्टोज, डेक्स्ट्रिन, फ्रक्टोज, गोल्डन सिरप, ग्रेप शुगर. ग्रेप शुगर हमें क्या लगता है कि ग्रेप का एक्सट्रैक्ट है, नेचुरल होगा. ऑल ऑफ दीज आर नेम्स फॉर हिडन शुगर्स विच is causing so much havoc in your body, so many diseases. I can't even begin to explain कि ये क्या करता है बॉडी में, राइट? तो ये नाम किसी भी पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट को लेने से पहले इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि हम ये नाम देखें. ये टैग्स पढ़ के कितने लोग प्रोडक्ट ले लेते हैं, बाय कर लेते हैं? हम जाते हैं मार्केट में, हमने देखा लो कोलेस्ट्रॉल, लो फैट, ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल. वो प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें है ही नहीं कोलेस्ट्रॉल, वैसे भी नहीं है, तो आपने ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल का बस टैग लगा दिया उस पर. इट एनीवेज डजंट हैव कोलेस्ट्रॉल. इफ़ इट इज़ फॉर एग्जांपल अ फ्रूट जूस, वेरी सिंपल एग्जांपल, हमने रियल का फ्रूट जूस बाय कर लिया. अ फ्रूट जूस विल नॉट हैव कोलेस्ट्रॉल, बट उस पर क्या लिखा हुआ है? ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल. वी थिंक अरे ये तो बहुत हेल्दी है, राइट? दीज आर ऑल मार्केटिंग टेक्निक्स जो कंज्यूमर को मिसलीड करते हैं. ये है ओट्स बिस्किट. इफ़ एनीबडी वर्क्स इन ब्रिटानिया प्लीज़ डोंट स्यू मी बिकॉज मैंने ओरिजिनल प्रोडक्ट का इमेज डाला है यहाँ पे. सो ये हमने क्या देखा? ओट्स बिस्किट है. हाउ मेनी ऑफ यू हैव कि मैं ग्लूकोज नहीं खाती पर मैं डाइजेस्टिव बिस्किट खाते हैं. हम ग्लूकोज मारी बिस्किट मोनाको ये बधु नहीं खाता. वी हैव हाई फाइबर डाइजेस्टिव बिस्किट. फाइबर कंटेंट कितना है? 2%, बट इट इज़ मार्केटेड एज हाई फाइबर बिस्किट. ये ओट्स बिस्किट जो ब्रिटानिया का है, आई विल शो यू द कंटेंट. इसका फर्स्ट इंग्रेडिएंट है रिफाइंड व्हीट फ्लावर. रिफाइंड व्हीट फ्लावर इज मैदा.
ओके, सेकेंड इंग्रेडिएंट इज शुगर. आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि इंग्रेडिएंट के नाम कैसे आते हैं? हाउ इज द प्लेसमेंट डन? द फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन जिसका होता है, इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ये होता है. मतलब कि रिफाइंड व्हीट फ्लावर अगर लिखा हुआ है, विच मीन्स कि मैक्सिमम कंटेंट इसमें है मैदा. देन इज शुगर. सो सेकेंड कंटेंट आ गया आपके हेल्दी ओट्स बिस्किट में, मैदा एंड शुगर. थर्ड इज edible vegetable oil. Fourth is rolled oats, which is 14%. Only 14% oats, and it is marketed as a oats biscuit. And we get fooled so easily कि ये oats biscuit है, ये healthy है, या इससे मेरा weight नहीं बढ़ेगा, इसको मैं चाय के साथ डेली खा रही हूँ, thinking कि मैं एक डाइट पे हूँ और मैं healthy खा रही हूँ. There are similarly so many foods with hidden sugars, all your sauces, dips, ketchups, breads. आप में से किसी ने स्टैंडर्ड जो क्वालिटी ब्रेड हम वाइट ब्रेड लेते हैं, जो सैंडविच बनाते हैं हम, कितने लोग प्रेफर करते हैं कि मैं सैंडविच खा रही हूँ, मैं ब्रेड खा रही हूँ, बट मैं ब्राउन ब्रेड खाती हूँ? प्लीज़ गो एंड चेक द ब्राउन ब्रेड का शुगर एंड द वाइट ब्रेड का शुगर. ब्राउन ब्रेड में ज़्यादा शुगर है. स्टैंडर्ड क्वालिटी ब्रेड्स 100% wheat bread भी आते हैं, yes, that's why I said quality breads, but because we don't check the content. There are healthier breads available. I'm not saying सारे products ऐसे हैं. There are healthier products available. There are people who actually don't add sugar, people who actually add jaggery powder or other things to make the product healthy. But we have to be very careful and mindful कि हम क्या पिक कर रहे हैं. Sugar is said to be 8 times more addictive than cocaine. Again, this is a researched fact. एक बार ड्रग्स की आदत छूटना ईजी है, बट शुगर की आदत छोड़ना इज 8 times more harder. सो अगेन कमिंग बैक टू द यंगर क्राउड, क्योंकि आप लोग अपनी हैबिट्स अभी फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग की लाइफस्टाइल अभी आप सेट कर रहे हैं, दिस इज़ अ गुड टाइम टू मेक हेल्दियर चॉइसेस. जो लोग 50-60s में आ गए हैं, it is still not too late, but it is difficult to change habits, right? But it is up to you to make that change happen. But at least for the younger generation, it is very important कि आप बहुत excel करें आपके करियर में, आपके जॉब्स में. बट एट द एज ऑफ 35-40 अगर आप बहुत अच्छे पीक पर हैं बट आपकी हेल्थ साथ नहीं है, टुडे सो मेनी यंग पीपल आर सडनली गेटिंग स्ट्रोक्स आउट ऑफ नो राइम एंड रीज़न, एंड वी आर वंडरिंग वाई. वेट बराबर है, सब कुछ बराबर है, कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, सडनली क्यों हो गया? बिकॉज वी डोंट नो दैट पैकेज्ड फूड्स का इंटेक इतना ज़्यादा है. वी ऑब्वियसली उस एज में हम रेगुलरली ब्लड टेस्ट नहीं करा रहे हैं. So many young people are getting diabetes. Diabetes is the biggest killer of today's century, right? हम टेस्टिंग ही नहीं करवाते क्योंकि. So even for the younger people, I will say, if not every 6 months, at least साल में एक बार get your blood test done. It is always better to be safe rather than be sorry. Okay? So अगर आप regularly blood test कराते हैं, at least you know कि मेरा sugar, cholesterol, everything is in place. I am on the right track. Because एक बार हो जाने के बाद to come back, it's another challenge. Possible health risks. Some of you already know obesity, diabetes, BP, cholesterol, हम सबको पता है. PCOD, hormonal imbalance for all the young girls, irregular periods, facial hair, acne, all of these are associated with obesity or your eating habits for that matter, because I don't see any obese girls here, but these are again hormonal imbalances are directly linked to your food habits. Okay, so if any of you have issues with your hormones, your food needs to change. Other obesity related health risks: cancer, gout basically is high uric acid. Okay, cancer, there are 13 different types of cancer that are associated with just being overweight. So आपका जो ideal body weight है, which again we'll calculate,
उससे जब आप थोड़े से हायर साइड पर जाते हैं, यू आर एक्सपोजिंग योर सेल्फ टू ऑल दीज हेल्थ रिस्क्स. ओके, डिप्रेशन, नन ऑफ अस लिंक आर वेट टू डिप्रेशन, राइट? कि वो तो मेंटल बीमारी है, ये तो फिजिकल है, बट इट इज़ ऑल कनेक्टेड, राइट? Sleep apnea, again, when you have a sleeping issue, osteoporosis or osteoarthritis. This osteoarthritis generally younger generation में नहीं, it comes in older generation after the age of 40-45. But all of these health risks are associated with one simple thing, your food habits. That is the reason why your lifestyle, your overall food intake has to be in check. How to calculate your BMI? This is a simple fun activity which you can. BMI basically refers to your body mass index. Okay, so आपकी height के हिसाब से आपका weight क्या होना चाहिए, BMI will tell you that. Okay, now if आपकी height है मान लीजिए 160 centimeter and your weight is say 65 kg, which means कि आपके ideal body weight से काफ़ी close हो. BMI, this is the formula. I'm sure you guys have calculators, so you can calculate if you want. आपको एक, I'll just pick up one volunteer. Anybody wants to check the BMI? So your height is 5'10" is in centimeter about 178 centimeter. Do you know your height? 180. So 1.8. Somebody please take out a calculator. 178. So just do 1.78 into 1.78. 1 point. So your height in meters. 1.75 you're saying? So then 1.75 into 1.75 is what? So 3.06, and your weight is 8. So 87 you divide by 3.87 divide by 3.06. 28.4 is your BMI. Okay. So now I will show you. This is again gone. How do we? Nana, how do I enlarge this? Just visible here properly, but 18 to 24 is your normal BMI. For all of you, for anybody who is an adult above 18 years of age, BMI doesn't differ between male and female or any age group. 18 to 24 is your normal BMI. 25 to 27 ये वो टाइम है जहाँ पे आप खुद को बोल सकते हो कि आप हेल्दी हैं. मेरा वजन ज़्यादा नहीं है, मैं बस थोड़ा सा हेल्दी हूँ. Okay, so that is the overweight category. 27 to 32 is grade 1. Now 35 tak you are in the grade 1, grade 2 obesity. So anywhere between 27 to 35 is your obesity zone, but your action should start here in the overweight category. Okay, 25 to 29. What action should start? Please seek professional help. Okay, do not Google your diets. Do not say कि मैंने rice बंद कर दिया है. Do not say कि मैंने fried और मीठा बंद कर दिया है. Yes, you do all of that, but when you are looking at sustainable, healthy weight loss, please seek professional help. One shoe doesn't fit all. Gujaratis what they do? Family માં એક જણ જાય dietitian પાસે, બીજા બધા same follow કરે. Right? So often I've seen that. मैडम मैं ये फॉलो कर रही हूँ, मेरे बेटे और मेरी भतीजी और मेरी मासी को भी ये दे सकती हूँ. All of you are differently made.
So one shoe will not fit you all. Yes, it is a good practice to कि आप family में अगर आप diet follow कर रहे हैं तो family में सब healthy खाएं. But if you are on a plan doesn't mean कि same plan सब लोग follow कर सकते हैं. Okay? Some simple take home messages is being healthy should be a way of life, not a target or a phase, right? अभी next 3 महीने मेरे भाई के बेटे की शादी है, इसीलिए weight loss करना है, इसीलिए 3 महीना diet करना है, that doesn't work. It will work maybe for those 3 months, but it should not be the case. Lifestyle should be, or healthy eating should be looked at as a habit. It has to be a habit कि भी यही हमारा pattern है. That is the, when you achieve that, that is the time when you actually start becoming healthy. Stay closer to your ideal body weight as much as possible. So if you can't calculate that BMI, another simple way to do is आपका जो height है, if your height is 170 centimeter, then your ideal body weight is around 70 kg, in and around that much. Okay, so जितना आप आपके आइडल बॉडी वेट से नज़दीक रहते हो उतनी आपकी बीमारियां, आपके जो पॉसिबल फ्यूचर हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हैं वो दूर रहते हैं. सो एज मच एज पॉसिबल स्टे क्लोजर टू योर आइडल बॉडी वेट, कीप कमिंग बैक ऑन ट्रैक, राइट? इट इज़ वेरी इजी टू स्लिप. आप कोई पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, आप इन जनरल आपने डिसाइड किया कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, बट एक शादी आ गई, एक ट्रिप आ गया, एक हॉलीडे आ गया, आप कहीं जाकर आए हैं या आपने फिर से कुछ अनहेल्दी खाना स्टार्ट कर दिया, डजंट मीन कि अभी छोड़ दिया सब. इफ 1-2 दिन चीट डेज आ गए, डजंट मीन इट्स द एंड ऑफ स्टोरी. कीप कमिंग बैक ऑन योर गोल. ऑलवेज सेट रियलिस्टिक अचीवेबल गोल्स. वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? बिकॉज एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आता है जब हम कुछ अचीव कर पाते हैं. इफ़ यू से कि 20 kg कम करना है 3 महीने में, यू फेल एंड देन बोलोगे ये तो होता ही नहीं है, डाइट वाइट આપણાથી નથી થતું, राइट? And most of our Gujarati clients do that. Now, just to give all of you a backdrop, I work with a bariatric surgeon. Bariatric surgery जो है, that is the last option जो कोई भी opt करेगा. It's a surgery जहाँ पेट को काट कर छोटा बना देते हैं, intestine से जोड़ देते हैं. It is a considered shortcut, but it is a long process to reach there. Mentally, emotionally, physically, one person goes through a lot, right? So, my point here was that जब आप हर बार ट्रैक पर नहीं आते हो वापस, थिंक ऑफ इट कि एवरी ईयर आवर इंडियन बॉडीज आर मेड इन अ वे कि अगर आप आपके वेट के लिए कुछ नहीं करते हो, एवरी ईयर यू विल गेन अ कपल ऑफ केजीज. एंड बाय द टाइम, इमेजिन इफ यू स्टार्ट एट मे बी आपका हाइट के हिसाब से यू आर 65-67. Every year if you are gaining say 2 kgs, we don't even realize when we've crossed the 85, 90, 100 mark. So, and these patients, because मैं इन patients से daily बात करती हूँ जो लोग 160, 180, 200, 250 kg पर पहुँच जाते हैं, and when we take their history, जब हम बात करते हैं, they say कि मैम पता ही नहीं चला. Their families also say बीजी कहीं तकलीफ न थी, 140 kg बीजी कहीं तकलीफ न थी. पण the mothers portrayed in a way कि he is fit and fine, but we know being at 140 kg आप कितने सारे health risk होते हैं, right? It's like sitting on a ticking time bomb, because कभी भी heart attack आ सकता है, कभी भी deep vein thrombosis हो सकता है, clot बन सकता है. So it is our choices that on a daily basis what you do will determine that. Lastly, focus on wellness, not weight. So when you heard कि nutritionist या dietitian कोई बोल रही है, please don't associate it just with weight, and do not focus on only your weight. Your weighing scale will not tell you how healthy you are. Weighing scale will only tell you how much you weigh. Okay? It will not tell you whether you are emotionally fit, whether you are sleeping well, whether you are actually healthy, or whether you are feeling healthy. Okay? So what we spoke in the initial slides as to focus on your overall wellness, that is very, very important. So please don't focus only on your weight. Thank you. Thank you so much. Yes, please tell me. What's your opinion about organic food? So organic food, again, depends on a lot of factors. Organic food is, first of all, expensive. So
it is not a reality, possible reality to do it on a daily basis. Now, many people are into farming and they do it. So it's a good thing if you know the source and if you trust the source that it is actually organic. It is, comparatively, it is beneficial. Thank you, Neha. Thank you so much. I request President Nirmal and Seema to give her a small token of gift. I request Sri Viren Gada to please come forward. आइए, please. We welcome Mr. Viren Gada. He is my neighbor, very interested in this program. I request Ashish Pal to please come forward. Ashish has completed his repayment. Ashish Pal joined VLS in 2020. He has done computer engineering, completed the course in 2021, and he has completed repayment this year. Thank you, Ashish. Request Nirmal to introduce our next speaker, Vishal. I will formally introduce Vishal ji. Vishal Thakkar, born in Kerala and is into the business of plastic packaging material from last 17 years under the firm name Balaji Packaging. He has been active in stock market for last many years and have great understanding of stock picking. For last few years, he has guided his friends and relatives and they have gained immensely from the stock picks. Soon, on the verge of starting his own financial consultancy and real estate consultancy business, I formally welcome Vishal Thakkar and the floor is yours, sir. Good evening, everyone. सबसे मेन सब्जेक्ट है ना, सबसे लास्ट में है. सबको पैसा बनाना है ना. Everybody wants to make money, and that is the subject which is coming last. And many people who left it, they are the one who's. Of course. Thank you, Sudhir, for giving me this opportunity to share my ideas of financial planning. मैं आपको एक बताता हूँ रीज़न वाई आई एम हियर टुडे. मैं जब ऑप्शन आया, जब मैंने देखा कि ही वॉज लुकिंग फॉर समबडी, तो मैंने ऑन द स्पॉट देखा, मैंने सुधीर को मैसेज किया कि मैं एड्रेस करना चाहता हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में. उसके पीछे रीज़न ये था, द मेन रीज़न बिहाइंड इट, ये मेरा फाइनेंशियल प्लानिंग मेरा बिजनेस नहीं है, और उसके पीछे रीज़न, स्ट्रॉन्ग रीज़न जो मेरा था वो 30 years बैक 1993-94 आई वॉज एग्जैक्टली वेयर यू आर टुडे. मैं वो पोजीशन पे था जो आज आप वो पोजीशन पे हो. मैं 1993-94 में बॉम्बे आया था और मेरी सैलरी थी 1000 रुपीज़. तो मैंने उस समय से मैंने देखा है कि जर्नी क्या होती है लाइफ में, एंड आई थॉट करने में भी जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है लाइफ का, उससे मैं आपसे शेयर करूं. मे बी टुमारो 30 years डाउन द लाइन, विथ टुडेज टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, एवरीथिंग, यू पीपल कैन बिकम मोर रिचर. एग्जाम्पल दू फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड, just for your information so that you can get motivated by it. 30 years back, 1000 rupees salary. Aaj, I bought my house, I bought my office, my both daughters abroad. So that's what we are. So you can imagine with today's information, everything, 30 years down the line, आप क्या क्या कर सकते हो. कोई इंडस्ट्री नहीं, कुछ नहीं मेरा. So everybody wants to become rich. सबको पैसा बनाना है, सबको पैसा वाला बनना है. तो उसके पहले, बिफोर आई कम टू द फाइनेंशियल प्लानिंग, में आप सबसे एक चीज पूछना चाहता हूं. इंग्लिश में पूछूंगा, चलेगा ना? हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड अबाउट योर ओन फ्यूचर, योर फ्यूचर एंड फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री? हाउ मेनी ऑफ यू? अपना फ्यूचर को लेके और ये कंट्री का फ्यूचर को लेके कितने लोग एक्साइटेड हैं? ओके, वेरी फ्यू. ऑलमोस्ट एवरीवन और फ्यू? कितने लोग हैं? सब लोग एक्साइटेड है कि नहीं अपने फ्यूचर को लेके?
बिकॉज आई हियर दैट many people are doing computer engineering, data science, AI, तो ये तो फ्यूचर का भी बहुत डिमांड में है, तो ऑब्वियसली यू पीपल आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योरसेल्फ। तो जब आप देख रहे हो कि यू आर एक्साइटेड अबाउट योर फ्यूचर, यू आर एक्साइटेड अबाउट फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री, जब हम देख रहे हैं ना, इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑलरेडी है, एंड इट्स गोइंग टू बी सुपर पावर। तो व्हेन यू सी दैट्स गोइंग टू बी द फ्यूचर, तो आज की तारीख में आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट क्या है? कैन एनीबॉडी टेल मी? आपके पास स्ट्रॉन्गेस्ट एसेट क्या है आज की तारीख में? Who told age? Exactly. That's the key. Age जो आज एज है ना, वो सबसे बड़ी स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है आपके पास। हम सबके पास सुनते हैं ना, इंडिया के पास सबसे बड़ा एसेट क्या है? द यंग पॉपुलेशन। एंड यू आर एट दिस स्टेज, यू आर एट 22, 23, कि जहां पर यू आर गोइंग टू सी द मार्वलस इंडिया। आप दिख रहा है ना, आज मेट्रो आ रही है, टेक्नोलॉजी है, हमको दिख रहा है कि फ्यूचर इज गोइंग टू सो ग्रेट। तो आपके पास वो एज है जो आप जो भी आज सोचोगे, वॉट एवर यू ड्रीम टुडे, बिलीव मी यू, चांसेस ऑफ दैट अचीविंग इज ऑलमोस्ट 100%। 100% मैं बोल रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ, 2019 में मैं अमेरिका गया था, तो बड़ा 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 बिल्डिंग देख के मैं फोटो निकालता था, मेट्रो में बैठ के, वहाँ एक एक्साइटमेंट होता था। अभी मैं जाके आया तो मेरे लिए एब्सोल्युटली इट वाज नॉट नेसेसरी, मुझे कुछ लगा ही नहीं कि भाई एक्साइटमेंट लगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आज इंडिया में दिख रहा है अपने को, बुलून पे दिख रहा है 60 फ्लोर्स के बिल्डिंग, 100 फ्लोर्स के बिल्डिंग हम इंडिया में देख रहे हैं। तो आज ये देख रहा है कि भाई इंडिया इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट अमेरिका और यूरोप, एंड दैट्स गोइंग टू हैपन। सो यू आर इन दैट फेज ऑफ योर लाइफ। सो अभी मैं आपसे और एक बात बताता हूँ, मुझे ना कंप्यूटर कुछ आता नहीं है। आई एम ए 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट। मैंने आज तक कभी कंप्यूटर को खाली अपना जो मेरा पैशन है, वैल्यूएशन, आई एम वेरी गुड एट वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी। मुझे वैल्यूएशन समझता है, कंपनी का धंधा समझता है। जो हम हिंदी मूवी देखते हैं ना, धंधा कैसे करता है, तो मुझे धंधा समझता है, मुझे कैसे करते हैं। आई अंडरस्टैंड व्हाट इज हाउ कंपनी फंक्शन, कंपनी को वैल्यू कैसे करना है, वो सब आता है। तो सुधीर ने मुझे बोला कि पीपीटी करके आओ। मैं बोला पीपीटी, बोले तो करो कैसे? और उसके बाद तो आपको बताता जोक क्या हुआ। तो उन्होंने मुझे एक पीपीटी उनका लास्ट ईयर का भेजा, उन्होंने बोला मुझमें एडिशन, उसमें कुछ ये कर दे। अभी उसमें वो सब कर दे, मैं बोला मैं करूँ तो कैसे करूँ, वो भी नहीं आता मुझे। आई रियली डोंट नो, मुझे आता ही नहीं है सब। मुझे एक ही चीज़ आता है, मैं जो करता हूँ, और मैं नोट पैड में, आज भी नोट पैड पे करता हूँ, ये भी लिख के नोट पैड पे। मुझे और कुछ कंप्यूटर आता नहीं है, पर पैसा बनाना आता है। आई टेल यू, आई जस्ट नो हाउ टू मेक मनी, सिंपल फंडा। तो देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग है ना, फाइनेंशियल प्लानिंग या फाइनेंशियल गोल्स जो होता है ना, वो कुछ आपको डिसिप्लिन रखने पड़ते हैं लाइफ में, तो ही आपके वो लाइफ में अचीव होता है। नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू बी डिसिप्लिन्ड अबाउट इट। कोई भी चीज़ करो ना लाइफ में, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। जब फाइनेंशियल डिसिप्लिन और फाइनेंशियल प्लानिंग मिक्स हो जाते हैं तो क्या होता है मालूम है लाइफ में? कैन एनीबडी टेल मी? जब आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन आ जाता है आपकी लाइफ में और फाइनेंशियल प्लानिंग मिक्स हो जाता है तो क्या रिजल्ट होता है मालूम है आपको? कैन एनीबडी टेल मी उसका इक्विवेलेंट क्या होता है? व्हाट इज द आउटकम ऑफ दैट? फाइनेंशियल फ्रीडम। हम सबको लाइफ में क्या चाहिए? फाइनेंशियल फ्रीडम। सुबह उठ के वो बोलते हैं ना, इस पैसे कमाने के पीछे नहीं भागना है, अपने को चाहिए अपने सपना पूरे करना है। वो तभी होता है जब अपने पास फाइनेंशियल फ्रीडम आती है। यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ। जो अपना पैशन रहता है ना, एवरीबडी हैव दैट पैशन, एवरीबडी वांट्स टू डू समथिंग इन देयर लाइफ, कुछ गोल्स अचीव कर रहे हैं, पर हम लोग सब अटक जाते हैं। क्यों? सुबह उठ के वही अपने को डे टू डे रिक्वायरमेंट के लिए अपने को पैसे के पीछे भागना पड़ता है, उसमें पूरी उम्र निकल जाती है। तो लाइफ में एक ही गोल होना चाहिए, फाइनेंशियल। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग यू हैव टू डू इज मेक श्योर दैट you plan for your financial freedom. So how to achieve financial freedom? You're about to start your career, तो कैसे करना है? That's what I'm going to guide you, because मैं लंबा नहीं जाऊंगा, but initial stage आपको कैसे करना है, that's what my idea is all about. So the moment you start earning money, जब आप पैसा कमाना चालू करते हो, in fact even if you not started making money, आप घर पे भी जब जाओ तो आपको सबसे पहला चीज करना है कि आपके घर में आपके पास मेडिक्लेम इंश्योरेंस कौन सा है आपके पास? मेडिक्लेम समझते हैं कोई लोग? आई होप एवरीबडी नोज इन टुडेज वर्ल्ड। क्योंकि क्या होता है, मेडिक्लेम इंश्योरेंस इतना इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में कि आप कितना भी फाइनेंशियल प्लानिंग कर लो, ये कर लो, अगर आपके पास मेडिक्लेम नहीं है, इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, और आपके घर में योर फादर मदर
आदमी को कुछ भी हेल्थ इश्यूज आ सकती है. सो वॉट एवर सेविंग्स वी डू इज ऑटो इमीडिएटली वो सब मेजोरिटी मैंने देखा है कि अपने लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास का वही होता है, पैसा कमाते हैं और मैक्सिमम पैसा हेल्थ में चला जाता है, हॉस्पिटल्स में. तो जो आपका मेडिकल इंश्योरेंस रहता है ना, 5 लाख का भी आप रीजनेबल अगर इंश्योरेंस निकाल लेते हो तो आज की तारीख में 2000 पर मंथ. मैं अभी देख के आया कि एवरेज अगर आप 50 ईयर्स के आपके पेरेंट्स हैं, योर मदर इज 47 योर से 24, सो इवन इफ यू वांट टू कवर योर सेल्फ फॉर 5 lakhs इन द सेंस अप टू 5 लाख तक का कोई भी खर्चा आया मेडिकल, सो इंश्योरेंस कंपनी विल पे. फॉर दैट यू हैव टू पे 2000 रुपीज ऑफ एक्सपेंडिचर. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके बिना क्या होगा कि आपने समझो कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग 2.5 लाख रुपया 3 लाख इकट्ठा कर लिया, मान लीजिए सब मेडिकल इश्यूज आ गए घर में, आपका सब फाइनेंशियल प्लानिंग चला गया, वापस आप पीछे आ गए, तो जस्ट 2000 रुपीज पर मंथ विल टेक केयर ऑफ दैट मेजर एक्सपेंडिचर. ऑब्वियसली एज योर इनकम ग्रोस यू हैव टू इंक्रीज दैट एलोकेशन, बिकॉज आज बीमारी बड़ी बड़ी आ जाती है, यू नेवर नो. सो everyone, no matter what, make sure that you have a mediclaim insurance with yourself. आज भी घर पे जाके सबसे पहला काम वही कीजिए. दूसरा सबसे बड़ा जो आपको करना है, बिकॉज व्हाई आई एम सेइंग दिस, कि फाइनेंशियल जो प्लानिंग, जो मेजर प्लानिंग के पीछे आपको जाना है, तो आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए. फाउंडेशन स्ट्रांग क्या होता है, जैसे हम देखते हैं ना, एक बड़ी बड़ी बिल्डिंग 60 फ्लोर 100 फ्लोर की बिल्डिंग बनती है, तो मैक्सिमम टाइम उसका फाउंडेशन पे बनता है. फाउंडेशन स्ट्रांग रहेगा तो ही आप बड़े बड़े बिल्डिंग पे बड़ा उसके ऊपर माले चढ़ा सकते हो ना. वही आपके फाइनेंशियल प्लानिंग में भी आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, राइट. सो फाउंडेशन कभी स्ट्रांग बनेगा कि भाई आपने जैसे मेडिक्लेम करा लिया. अभी सेकंड आता है जो इंश्योरेंस. अभी इंश्योरेंस में क्या होता है, लोगों को गलती क्या करते हैं, इंश्योरेंस को सेविंग समझ लेते हैं. हम लोग मिडिल क्लास का, मेरे साथ भी वही होता है. व्हेन आई स्टार्टेड, हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं, इंश्योरेंस बोलो तो सेविंग कर लेते हैं. इंश्योरेंस इज नॉट सेविंग्स. इन टुडेज वर्ल्ड इंश्योरेंस इज नॉट ए सेविंग. इंश्योरेंस बेसिकली कवरेज होता है, रिस्क कवरेज, अलग अलग टाइप का. जैसे मेडिक्लेम हो गया जो हेल्थ को कवर करता है. दूसरा आपका कार इंश्योरेंस हो गया जो आपके कार को कुछ हो गया तो प्रोटेक्ट करता है. वैसे आपका लाइफ को भी कवर करता है. सो इंश्योरेंस इज प्योरली नीड टू बी बॉट फॉर योर ओन कवरेज. एंड ब्यूटी क्या है इंश्योरेंस लेने का, जो एक प्रोडक्ट है जो आपको सब, एज यू स्टार्ट अर्निंग मनी इमीडिएटली आपको वो, बिकॉज यू आर यंग है ना, यंग लेते हो तो ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, जिसका नाम है टर्म इंश्योरेंस. कितने लोग ने सुना है टर्म इंश्योरेंस? 4-5 पीपल. सो आई एम ग्लैड. तो ये इन्फॉर्मेशन मेरी काम आएगी आपको. तो टर्म इंश्योरेंस है ना, वो अभी होता है क्या है कि हम लोग सब लोग है ना, मोस्ट ऑफ अस वी वांट टू गिव वी अर्न टू गिव ए बेटर लाइफ फॉर फैमिली. हमारे पेरेंट्स को फ्यूचर में बच्चे होंगे उनको अच्छा देना. तो मान लो कभी कुछ हो गया अपने लाइफ के साथ, नो इमेजिन समथिंग हैपेंस, एनीथिंग हैपेंड, एक्सीडेंट, आदमी को कुछ भी हो गया, देन व्हाट हैपेंस टू दैट अर्निंग मेंबर को कुछ हो जाता है तो क्या होता है ना, मेजोरिटी पीपल का इंश्योरेंस होता ही नहीं. आई नो माय कजिन, वेल ही वाज अर्निंग, शिपिंग कंपनी में काम करता था, अच्छा खासा पैसा कमाता था, कोविड में उसकी डेथ हो गई. ही हैड नो टर्म इंश्योरेंस. ही वाज अर्निंग 1 लाख रुपीज अ मंथ. इमेजिन अगर उसको वो नॉलेज होता था टर्म इंश्योरेंस के एक प्रोडक्ट है जिसका अगर मान लीजिए आपको 5 लाख का पैकेज है, नो आज 3-4 लाख 4 लाख का पैकेज तो फ्रेशर को मिल जाता है, ऐसा मैं सोचता हूँ. इमेजिन यू आर अर्निंग 3 to 5 lakhs रुपीज का आपका ईयरली पैकेज है, इंटू 15 टाइम्स का इंश्योरेंस कंपनी विल गिव यू कवरेज. दैट मीन्स 75 lakhs रुपीज का आपको कवरेज, यानी आपकी वैल्यू बन जाती है कि आपकी वर्थ जो है ना 75 लाख रुपए की है. तो मान लीजिए कभी आपको कुछ हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी विल इंश्योर दैट 75 lakhs रुपीज ऑफ वर्थ ऑफ मनी इज गिवन टू योर फैमिली. आप समझेंगे नहीं? तो इनडायरेक्टली क्या होता है, मतलब आपकी वर्थ बन जाती है 75 लाख आपकी वर्थ. और उसका सब दूसरा एडवांटेज क्या है, जब यंग एज पे लेते हो, व्हेन यू बॉट इट एट 22-23, उसका जो प्रीमियम रहता है ना सबसे कम रहता है. तो लोवेस्ट प्रीमियम में आपको टर्म इंश्योरेंस मिलता है. इमेजिन 75 lakhs या 50 lakhs का प्रीमियम कवरेज पॉलिसी लेते हो टर्म इंश्योरेंस एट द एज ऑफ 24, यू नो प्रीमियम यू हैव टू पे 7,000 रुपीज, रफली अराउंड 7,000 पर एनम. महीने का कितना हो गया? 300-400 रुपया, 600 रुपया. 600 रुपया में कोई आदमी आपको 75 लाख की वैल्यू बना दे रहा है आपको कि महीने का मुझे 600 रुपया दो, मैंने तुम्हारी वैल्यू 75 लाख कर ली. गोल्डन है ना, आपकी वैल्यूएशन भी बन गई. मान लीजिए कल आपका सैलरी आपका 1 लाख पे आ गया महीने का, 10 लाख का पैकेज हो गया, सीधा 1.5 करोड़ का ले लो. 1.5 करोड़ की वैल्यूएशन बन गई आपकी वैल्यू, आपकी पर्सनल वर्थ, आपकी ह्यूमन लाइफ की वैल्यू इंश्योरेंस कंपनी 1.5 करोड़ ने बना दी. कि आप कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो, 1.5 करोड़ जब कमाओगे. इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि आपको कुछ हो गया ना तो आपकी फैमिली को हम 1.5 करोड़ दे देंगे. प्रीमियम कितना देना है? यंग एज पे लेते हो तो
हार्डली 10 to 15,000 रुपीज बिकॉज यू बॉट इट एट यंग एज. दूसरा ब्यूटी क्या है इसका एडवांटेज, मेडिक्लेम में क्या होता है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है ना उसका प्रीमियम बढ़ते रहता है. एज योर एज ग्रोज द प्रीमियम इंक्रीजेस. टर्म इंश्योरेंस ऐसा प्रोडक्ट है जहां पर आपने एक बार जो प्रीमियम डिसाइड कर लिया, आपने यंग एज 24 में ले लिया, 40 साल की उम्र में आपके बच्चे वगैरह हुए, 70 तक का 70 ईयर्स तक का 70-75 ईयर्स तक का आप कवरेज ले सकते हो ना. 70-75 ईयर्स तक का आपको कुछ भी हुआ आपकी फैमिली को उतना पैसा मिल जाएगा. पर 24 में आपने पॉलिसी आपने ले ली फॉर द टिल द एज का कवरेज ऑफ 75 ईयर्स, 7,000 या 10,000 आपका प्रीमियम डिसाइड हुआ, तो आपको 70 ईयर्स तक जितना साल तक जिंदा है तब तक आपको सेम प्रीमियम भरना है. यू अंडरस्टैंड, प्रीमियम आपका कभी बढ़ता नहीं है. तो यंग एज में आपने ये टर्म इंश्योरेंस ले लिया ना, एक तो वैल्यूएशन बना दिया, आपकी खुद की वैल्यू बन गई कि भाई आपको मालूम है कि आज क्या है, आपको पेरेंट्स को पता है देखो मेरी ये एक पॉलिसी है 1 करोड़ रुपए की, कल मुझे कुछ भी हो गया ना आपको करोड़ रुपया मिल जाएगा. कल आपके बच्चे हुए बराबर ना, टुमारो यू विल हैव सन, एवरीबॉडी वांट्स टू एंश्योर दैट दे हैव अ ग्रेट फ्यूचर. उनको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम तो यू आर क्रिएटिंग इनडायरेक्ट वेल्थ फॉर योरसेल्फ, राइट. So I hope term insurance you people have understood. Many people are not aware. So make sure that you all have immediately जैसे आपको सैलरी मिलती है आप उसको जरूर खरीदिए, बराबर. You meet any consultant, कोई भी हमारे रोटरी में भी है, you can meet somebody and take that insurance. मेडिक्लेम में आपको एक चीज बताना भूल गया, बिकॉज बहुत सारी कंपनी में क्या होता है उनका ग्रुप इंश्योरेंस भी होता है. तो व्हेन यू गेट, आपको जब हायर कर लेते हैं ना कंपनी, तो आप उनको ये पूछ लेना जरूर कि भाई आपका कोई ऐसा कंपनी इंश्योरेंस भी है कि नहीं. तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका प्रीमियम बहुत कम हो जाएगा, राइट. सो मेक श्योर दैट you ask that if indirectly you can get into that company insurance, you have to pay a very less premium. तो फाउंडेशन 1 मेडिक्लेम, फाउंडेशन 2 टर्म इंश्योरेंस. तीसरा आपको क्या करना है बिफोर कमिंग टू द मेजर थिंग, तीसरा आपको ये करना है कि बिकॉज वी आर इन द अनसर्टन वर्ल्ड ना, कोविड आ गया, रिसेशन की बात चल रही है, सब हो रहा है, जॉब कभी भी आती है जाती है ना, यू कैन लूज द जॉब ऑल्सो. अभी होता है क्या है, बिकॉज हम लोग सेविंग्स नहीं रखते हैं प्रॉपर, हमारा डे टू डे एक्सपेंस, हमारा मंथली एक्सपेंडिचर सबका रहता है ना, एवरीबडी हैव दैट मंथली एक्सपेंडिचर, उनका कमिटमेंट्स रहता है. तो बिकॉज वी डोंट कीप दैट इन आवर बैंक, हम लोग क्या करते हैं, वी डोंट प्लान इट, सडनली सब शौक आ जाते हैं और हम लोग को अरे क्या हो गया, एंड देन क्या होता है, घर का गोल्ड बेचते हैं, लोन लेते हैं, एंड देन वो ट्रैप में आ जाते हैं. तो फर्स्ट ईयर आपको ये करना है, मेडिक्लेम के पीछे आपने सेविंग्स कर लिया, आपको अभी मंथली पेमेंट पे भी आपको मेडिक्लेम मिल जाता है, मंथली पेमेंट पे भी आपको टर्म इंश्योरेंस मिल जाता है, एक साल देने की जरूरत नहीं है. तीसरा ये करना है कि जो आपका मंथली एक्सपेंडिचर है वो आपको पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. जो आपका मंथली एक्सपेंडिचर, हर आदमी का एक घर खर्ची जो बोलते हैं ना हम लोग, हाउस होल्ड बजट रहता है कि भाई हाउ टू एवरी मंथ जो अपने चलाने के लिए 30,000 या 20,000 जो भी है, वो आपको पहले अंडरस्टैंड करना है. उसका 3 to 6 मंथ्स का है ना, आपके अकाउंट में आपको प्रोविजन करना है, उसको एफडी कर देना है. जो आपका समझो मान लिया 20,000 रुपये या 30,000 आपका मंथली एक्सपेंडिचर है, इनटू 3 to 6 मंथ्स का आपको पहले उसको सेविंग करके फिक्स डिपॉजिट करना है. उससे क्या होगा कि कभी ऐसा कोई अनसर्टन टाइम आ गया, इमरजेंसी आ गया, तो आपके पास इमरजेंसी फंड आ गया. सो आपको कभी शॉक नहीं लगेगा, नोर यू हैव टू बोरो मनी और गेट इनटू दैट ट्रैप. तो अभी इससे ये तीनों करने से क्या हो गया, अभी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है लाइफ में. मेडिकली आपको कुछ प्रॉब्लम है तो क्या करोगे आप, मेडिकल इंश्योरेंस है, आपके फैमिली में आपको फादर कुछ हो गया तो यू डोंट हैव टू वरी, आपको शॉक ही नहीं लगेगा भाई मैं पैसा कहाँ से लाऊंगा, कैशलेस पॉलिसी एडमिट करा दिया, 4-5 लाख का खर्चा है, नो वरीज. कुछ आपको कुछ हो गया, यू हैव अ टर्म इंश्योरेंस, नथिंग टू वरी, योर पेरेंट, योर फैमिली गेट्स व्हाटसोएवर अमाउंट. जॉब चली गई तो आपको मालूम है यू आर यंग, 3-6 महीने में दूसरी जॉब ढूंढ लूंगा, उतना पैसा है, आई डोंट हैव टू वरी. So these 3 things will ensure that you have a strong foundation, right? Once the foundation is strong, अभी आपको 60 माड़े की बिल्डिंग बनानी है, जो अपना फाइनेंशियल फ्रीडम इज और गोल, बराबर. अपना गोल तो वही है ना, पैसा वाला बनना है, रिस्क टेकर बनना है. बिकॉज यंग है तो क्या है, एडवांटेज है, यू कैन बिकम ए बिग रिस्क टेकर. मुझे जब आप लोग को देखता हूँ ना, यंगस्टर को मैं देखता हूँ ना, मुझे इतना मजा आता है ना, यंग हो तो मजा आना चाहिए, क्योंकि रिस्क टेकर बता रहे आप कितना भी रिस्क लो, फेल होते कुछ नहीं. वैसे ही आप जब फाइनेंशियल प्लानिंग करोगे ना, फाउंडेशन स्ट्रांग कर दिया, अभी आपको जाना है नेक्स्ट फ्लोर पे. मेजोरिटी लोग गलती क्या करते हैं, मेजोरिटी इंक्लूडिंग मी, हम सब लोग ने गलती की है. जैसे ही हम लोग थोड़े लेवल पे आते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, लोन पे घर खरीद लेते हैं, लोन पे गाड़ी खरीद लेते हैं,
बराबर है। फिर क्या होता है, वापस सुबह उठो, वापस भागो, क्यों, EMI भरनी है, तो उम्र उसमें ही निकल जाती है। यू एंड अप लिविंग लाइफ पेइंग EMIs एंड लोन्स एंड एवरीथिंग। फाइनेंशियल फ्रीडम आते आते बहुत टाइम निकल जाता है। अभी आपको ये नहीं करना है। मेक श्योर दैट नो यू ट्राई सी टू इट दैट यू लिव ए सिंपल लाइफ एंड सेव मैक्सिमम। अभी तक क्या करते हैं हम लोग, मेजोरिटी लोग क्या करते हैं, रोज सुबह उठते हैं, पैसा के लिए, पैसा कमाने के पीछे खुद काम करते हैं। फाउंडेशन स्ट्रांग होने के बाद क्या करना है, पैसे को काम पे लगाना है, राइट? पैसे को काम पे लगाना है, बराबर है। पैसे को काम पे कैसे लगाओगे? आपने म्यूचुअल फंड सुना है? म्यूचुअल फंड्स, बस अभी आपको क्या करना है, हर महीने जो भी आप मेक श्योर दैट मैक्सिमम सेविंग्स, मैक्सिमम जो भी सेव कर सकते हो म्यूचुअल फंड्स में डालो। म्यूचुअल फंड्स में डालने से क्या होता है, एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड्स, आई एम बेसिकली मैं स्टॉक पिकिंग में मुझे ज़्यादा पैशन है और मुझे अच्छा लगता है। और स्टॉक पिकिंग में, म्यूचुअल फंड्स में इनडायरेक्टली आप स्टॉक पिकिंग कर रहे हो। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्री, नाम सुना होगा सब लोग ने, बराबर है। अभी रिलायंस इंडस्ट्री में आप बोलोगे कि भाई आप पार्टनर बन सकते हो, बिलीव मी यू कैन बिकम ए पार्टनर। दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। हम इतने सालों से हम लोग को ये मालूम ही नहीं था। हम लोग क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट में जाते हैं, म्यूचुअल फंड में डालते हैं, ये सोच के भाई अपना पैसा डबल होना चाहिए या मल्टीप्लाई होना चाहिए। ये कोई नहीं सोचता कि आपको यहाँ बैठे बैठे 1000 रुपया डाल के भी या 2000 रुपया डाल के भी आप पार्टनर बनते हो इनडायरेक्टली। ग्रेट, मुकेश अंबानी इज वर्किंग फॉर यू। क्या चाहिए? बिलीव, हंसने की बात नहीं है, हंसने की बात नहीं है। दैट्स व्हाट आई डू। मुझे और कुछ आता ही नहीं है। मुझे काम, मेरे को अभी काम करने को मेरे को कंटाल आता है। मैं खाली दीपक भाई को ढूंढता हूँ, दीपक भाई को स्टडी करता हूँ, देखता हूँ दीपक भाई मेहनती आदमी है, पैसा लगा दो उनमें, बस। अबे दीपक भाई काम करें, मेरे को तो पैसा लगाना आता है। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। तो आपको वही करना है। तो पैसा वाला बनना है ना, बहुत इजी है। पैसे को ठिकाने पे लगाना आना चाहिए बराबर। यू शुड नो हाउ टू पुट मनी एट द राइट प्लेस, वेरी सिंपल। तो आपको और एक बात ध्यान रखना है, जब यंग हो ना, एवेन्यूज ढूंढो पैसा कमाने की, पार्ट टाइम करो। मैं US में गया ना, वहाँ पर यंगस्टर लोग को मैं देख के हैरान हो गया। सुबह जॉब करेंगे एक जगह पे, शाम को मैकडॉनल्ड में काम करेंगे, पैसा वो अपना खर्चा निकालने के लिए सब कुछ करेंगे। तो आप यंग हो ना, मेक श्योर दैट यू अर्न मोर एंड सेव मैक्सिमम। खर्चे कम करो, लोन से दूर रहो, मैक्सिमम ट्राई, क्रेडिट कार्ड दूर रहो, लोन, घर भर, सोशलाइज। ये सोशल जो पिक्चर बनाते हैं ना हम लोग, घर खरीदना है, 1 करोड़ का 25 लाख का घर खरीद लिया बदलापुर में, कितना लोन लिया? 15 लाख का लोन ले लिया, दिखाने के लिए 25 लाख का घर बन गया। 15 लाख की EMI के पीछे आप क्या कर रहे हो? आप फाइनली आप वही कर रहे हो ना, आप किसी और का, वो जो FD में पैसा रख रहा है, आप उसको रिटर्न देने के लिए आप मेहनत कर रहे हो। आपको लग रहा है कि आपने घर खरीद लिया, बट यू आर वर्किंग फॉर समबडी एल्स। यू गॉट इट? वेयर बाय आपको क्या करना चाहिए? यू आर स्मार्टर पर्सन। यू सेड मैं उसके लिए क्यों कमाऊं? दैट मुकेश अंबानी मेक्स फॉर मी ना, दैट टाटा मेक्स फॉर मी, है क्या नहीं? मजा है सब रियली। जो ये समझ जाएगा ना ये टेक्निक, आप फाड़ डालोगे। बिलीव में 10-20 साल के बाद है ना, मुझे आप ढूंढोगे किधर है विशाल। गारंटी ढूंढोगे, 100%, मार्क माय वर्ड। और जो इंडिया स्टेज में ना आज, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल यू अंडरस्टैंड वेयर इंडिया स्टैंड्स टुडे। बिलीव में यूँ, मैं तो अभी अमेरिका जाके हूँ, मुझे लग रहा है इंडिया भी फाड़ने वाला है। इंडिया इज गोइंग टू फाड़ने वाला है। तो आप वो जैसे बोलते हैं 1947 में एक गोल्डन पीरियड था जो लोगों ने देखा कि इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। नाउ देयर इज वन मोर ग्रेट टाइम इज गोइंग टू कम विच यू आर गोइंग टू विजुअलाइज, वेयर इंडिया इज गोइंग टू बिकम सुपर पावर एंड यू आर एक्चुअली गोइंग टू विजुअलाइज दैट। तो ये टाइम में अगर आपने कुछ बड़ा कुछ किया नहीं, बड़ा के रिस्क नहीं लिया, तो मान लो जिंदगी भर यही लाइफ जीनी है। सो मेक श्योर दैट एवरी मंथ, जैसे मैंने म्यूचुअल फंड्स का जस्ट इलस्ट्रेट करके आया था, कि इवन इफ यू आर सेविंग 5,000 रुपीज पर मंथ, 5,000 रुपीज, बराबर है, आपकी डेफिनेटली 4-5 साल के बाद योर इनकम विल ग्रो अप, यू कैन गो अप टू 10,000, 20,000। आई एम श्योर एक्सपीरियंस के बाद सैलरी बढ़ती है। मैं 5,000 का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 5,000 इफ यू इन्वेस्ट एवरी मंथ फॉर 15 ईयर्स, जस्ट बाय गेटिंग 12% रिटर्न, 12% से भी आपका अगर को म्यूचुअल फंड्स वाला ग्रो करके भी देता है ना, आपको मालूम है आपको पैसा कितना हो जाएगा? कैन एनीबॉडी टेल मी? 5,000 पर मंथ, 15 ईयर्स यू इन्वेस्ट, 12% से आपका पैसा ग्रो कर रहा है, कितना पैसा हो जाएगा? बात यार ज़्यादा हो गया।
हाँ, so that is so 5,000 per month, 12% से रिटर्न आपको अगर ग्रो कर रहा है, आपका पैसा ग्रो कर रहा है, आई एम श्योर इट विल ग्रो मच हायर देन दैट. बट इवन इफ जस्ट बाय 12% से भी अगर आपको ग्रो कर रहा है तो दैट विल बिकम 25 lakhs. 25 लाख रुपये आपका 15 साल के बाद हो जाएगा. अभी आप सोचोगे भाई 25 लाख होगा ये सब 15 साल के बाद. अभी मैं आपको दूसरा अभी इसके बाद का मेन टेक्निक बताता हूँ. बराबर, ये तो अब स्टार्टिंग सफरिंग तो करना पड़ता है ना भैया, पैसा तो नहीं बनता है ऐसे थोड़ी आप ऊपर बनते हैं. ये सब लोग ऐसे हम लोग इधर तक सब लोग, आप किसको भी देख लो, कोई भी बड़ा बना ना उसका आप एज देखोगे ना आपको मालूम पड़े 50 साल 60 साल. तो एवरीबडी स्ट्रगल, सबको स्ट्रगल तो करना है. तो आपको कितना स्ट्रगल करना है ये आपके ऊपर है. आप अगर बोलोगे पैसा आया मैंने घर खरीद लिया, लोन पे गाड़ी खरीद लिया, तो फिर आपको वही 70 साल की उम्र हो जाएगी. पर आपने सेविंग किया ज़्यादा और आपने कॉर्पस, अगर आपने 5,000 के बदले 15,000 सेव किया तो मल्टीप्लाई 75 lakhs, 25,000 कर दिया तो 1 करोड़ है ना. सो एंड सो अगर 12% अगर 15% रिटर्न में और ज़्यादा 15 साल दो ना. यू आर 24 and 15 years down the line, by the time you're 39, imagine you get a altogether fund of 1 crore in your hand. बराबर है, 1 करोड़ आपके हाथ में मिला. अभी क्या होगा? अभी तो आप क्या करते हैं 5-5 हजार 10-10 20 हजार करके आप पैसा डालते थे. फिर क्या बोलोगे? फिर बोलोगे मुकेश अंबानी ये ले 1 करोड़ रुपया. हाँ, मुकेश अंबानी को बोला अभी मैं वो 5-5 हजार नहीं डाल रहा हूं, अभी तुम मेरा एक काम कर, बड़ा पैसा ले और बड़ा काम कर. फिर मल्टीप्लायर इफेक्ट कितना बड़ा होगा? इमेजिन करो आपका वेल्थ क्रिएशन, आपकी नेक्स्ट जनरेशन कितनी, आपको जो बोलते हैं ना जो बड़े पैसे वाले को हम देखते हैं ना. आज मैं क्यों आपको एड्रेस करना चाहता था, बिकॉज ना वो आई हैव लर्न दिस कि हम लोग की जो सोच है ना, हम लोग को ये टेक्निक कोई समझाता नहीं है. जो पैसे वाले जो लोग बनते हैं ना, वो पैसे वाले कैसे बने ना, या तो फिर आपके पास टैलेंट है, आपने इंडस्ट्री डाल दिया, फैक्ट्री बना दिया, तो कल मैं आपके कंपनी में इन्वेस्ट कर दूंगा बिकॉज मुझे तो पैसा लगाना आता है. आइदर यू चूज दैट रूट, और अगर आप जो नॉर्मल मिडिल क्लास वे से जाना चाहते हो, मेक श्योर दैट यू पुट योर मनी इन टू द राइट हैंड्स एंड मेक श्योर दैट मनी इज गेटिंग मल्टीप्लाइड. Is that very clear? I hope this is what I want to tell you. This is what the financial planning, the financial goal. Ultimately ये सब करने से क्या होगा? पैसा पैसे को खींचेगा और आप you will become more wealthy in your life. I hope I'm done for this. और तो मैं काफ़ी मेरा तो stock picking passion है. I could have told you how to pick stocks and everything, but you're too young for this. But maybe 3 years, 4 years down the line, maybe you come back, you're earning money, and maybe मेरा भी तब consultancy proper चालू होगा. So I'll tell you how to pick stocks, how to invest directly. No, instead of going to mutual funds, invest directly into equities, directly buy shares. So that's all you can do. So thank you so much. Thank you, Sudhir, for giving this opportunity. Thank you. Yeah. Please. Yeah. देखिए, हाँ, गुड क्वेश्चंस. देखो, टर्म इंश्योरेंस भी है ना, आप सस्ता प्रीमियम देख के मत जाइए. आपको अंडरस्टैंड करना है कौन सी कंपनी है. जो आज की तारीख में HDFC है, ICICI है, या बड़ी जो मैक्स है. यू हैव टू लुक एट द कंपनी विच यू कैन विजुअलाइज के भाई ये कंपनी 20-25 साल के बाद भी ये अलाइव रहेगी. यू कैनॉट पुट इन एनी कंपनी. जैसे आपने जरा अदर कंपनी जो छोटे प्रीमियम सस्ते प्रीमियम को देगी कवरेज, बट यू डोंट नो ना, जब जरूरत होगी, जब आपका प्रीमियम क्लेम करने के बारे में वो कंपनी नहीं खड़ी रहेगी, तो थोड़ा बहुत उसमें क्या है, इसलिए मैंने बोला कि यू मीट सम कंसल्टेंट जो आपको उसमें प्रॉपर एडवाइस करेंगे, सो दैट यू डोंट हैव टू यूज योर ब्रेन्स. देयर आर स्मार्ट पीपल हु स्मार्ट इन दिस, उनका डे टू डे काम है. तो हमारे रोटरी में भी राजेंद्र दुल्ला है, उनका ना आशीष जोशी अभी ज्वाइन करने वाला है. दे आर स्मार्टेस्ट पीपल. यू कैन ऑलवेज कम टू रोटरी अबाउट इट एंड जस्ट कंसल्टेंट. सो यू ऑलवेज जब आपको नहीं आता ना, एक्सेप्ट कर लेने का, कभी गूगल नहीं करने का कि भाई ये क्या है. आपको ऑन द स्पॉट कोई स्मार्ट पर्सन है ना, उसको मिल लेना है. जब स्टॉक पिक करने की बात हो तो मेरे पास आ जाना, मैं आपको गाइड कर दूंगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Very passionate talk. अभी तो शेयर पिकअप का है ना रोटरी के लिए. I think I was okay. Good. Perfect. बहुत अच्छा. मज़ा आया सबको? थोड़ा लेंदी हो गया, लेकिन काफ़ी नॉलेजेबल था. जो भी हमारा इवेंट हम प्लान करते हैं, उसके पीछे जो सुधीर जोशी जी जो मेटिकुलस प्लानिंग उन्होंने किया है कि हमारा फुल डे सेशन रखना है,
और उसके अंदर कौन से स्पीकर्स रहेंगे, क्या टॉपिक्स रहेंगे, कौन एक्सपर्ट है। जो हमारे सामने जितने भी स्पीकर्स ने कहा है वो अपने आप की फील्ड में मतलब दे हैव हाई स्टैंडर्ड एट देयर एंड, और वो बहुत सालों से अपने फील्ड का मेहनत कर कर के वो आगे आए हैं। एक्चुअली जो भी स्पीकर्स हमारे सामने आए हैं वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं। ऐसे हम स्पीकर्स को चुनते हैं और आपके सामने हम लेके आते हैं। तो वो सारा जो प्लानिंग होता है आपके सामने, ये फ्लॉलेस जो इवेंट हम करते हैं उसके पीछे कई महीनों का ये सफल मतलब मेहनत लगती है। तो इसके लिए मतलब दो शब्द नहीं मिलते मुझे कि जो मैं सुधीर जी का शुक्रिया करूं, क्योंकि जो मेहनत वो लेते हैं, मतलब आई टेल यू के कुछ भी एक छोटी सी बारीकी डिटेल्स होती है। यानी हमको ये लगता है कि अरे एक बंदे का कोई डोनेशन आ गया। अभी ये साल हमने एक कैंपेन चलाया था जो हमारा क्राउड फंडिंग का कैंपेन था, जिसमें हमने 21 लाख जमा किया। तो वो सारा एग्जीक्यूशन कैसे होगा, क्या आइडियाज़ उसके पीछे लगेंगे। फिर हमेशा सुधीर जी का ये मंत्रा रहा है कि पहले हम स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम फंड बजट डिसाइड करेंगे। तो ये पहले जब मैंने सोचता था, समझता था ना, तो ऐसा लगता था यार ये कैसा होगा, बिना बजट के अपन कैसे काम करेंगे इसके इस पे। क्योंकि कोई भी चीज़ को आपको प्रॉपर प्लानिंग से एग्जीक्यूट करना है तो यू नीड टू फिगर आउट कि उसके प्रोस एंड कॉन्स क्या है। तो वो सारी जो चीज़ें सुधीर जी के माइंड में एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं VLS प्रोजेक्ट को लेते हुए। और ये हम हमेशा बोलते हैं कि ये हमारे क्लब का सबसे पसंदीदा प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर हमारे क्लब के सबसे ज़्यादा मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि उनका हार्डवर्क यहाँ पे दिखता है। तो सुधीर जी और सीमा जी को मैं एकदम थैंक यू बोलना चाहता हूँ यहाँ से, क्योंकि उनके एफर्ट्स के बिना ये शायद 12 साल यहाँ तक हम आए हैं और आगे भी जाएंगे, तो ये सिर्फ उनकी मेहनत होगी। क्योंकि वो इतना जो डेडिकेशन करते हैं, मतलब अभी आपको ऐसा लगता होगा कि हर एक बंदे को इंट्रोडक्शन देना, उसके पीछे फॉलोअप लगाना, फिर कौन से टॉपिक्स पे कौन सा स्पीकर आएगा, तो ऐसा ये सब हमारा टीम वर्क होता है। लेकिन ये सब प्लानिंग सुधीर जी की है। जो हमने वीडियो भी वॉइस ओवर देखा सबसे स्टार्टिंग का, तो वो भी हमने ऐसे ही प्लान आउट किया था कि VLS के जो सक्सेस स्टोरी है वो कैसे आएगी। तो हम आप लोगों को भी यही बोलते हैं कि सपने तो देखने चाहिए, और वो सपने को देखने के लिए जो आपने सपने देखे हैं उसको पूरा करने के लिए शिक्षा एक माध्यम है। तो शिक्षा वो विंग्स है जो आपको ऊपर तक लेके जाएगा। और उसके अंदर मतलब काफ़ी सारा वो फिलेंथ्रोफी सारे सब लोगों ने जो जो कहा है वो अलग अलग टॉपिक्स में, आप जैसे इंटरव्यू का था, क्या होता है छोटी छोटी बारीकियां लोग देखते हैं आपकी। जैसे डाइट के बारे में मैडम ने कहा, जैसे पर्सनल फाइनेंस पे विशाल जी ने कहा, हमारे जो चीफ गेस्ट थे उन्होंने एक बहुत सटीक बात करी जो मेरे अभी भी दिमाग में है, कि जब हमारे सामने कोई इंटरव्यूअर आता है, हम इंटरव्यू लेते हैं, हम उसको सीधा भी एक ही सवाल पूछना है मुझे तो, कि भाई अपना जो रेज्यूमे में लिखा है वो लिख के बता। तो ये जो बहुत बेसिक बात है, हम कितना बड़ा किसी का कॉपीराइट लेके जाते हैं, आप अपने बारे में बताइए। वो मैडम ने भी कहा कि इसके अंदर नहीं लिखा है वो आप अपने बारे में बताओ। और पूरे 25 साल का मेहनत आपको 15 मिनट मिले हैं आपको प्रेजेंट करने के लिए। तो डू योर बेस्ट। और VLS प्रोजेक्ट आपके साथ में है, रोटरी क्लब ऑफ मुलुंड आपके साथ में है। कोई भी दिक्कत है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर्स आपके पास हैं। तो इससे आज का सेशन हम पूरा करते हैं। तो वी एडजॉर्न द मीटिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर कमिंग हियर फॉर द डे। थैंक यू। There is a small tea and coffee arranged for everyone at the ground floor. So please have that and go. Thank you. आज